नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Respected all, Assalamu alaikum. I welcome you all to this 4 days training session on the use of artificial intelligence tools in education and research. In order to formally begin with the training modules, I would like to request the organizer of the event, Professor Dr. Muhammad Asif, Dean Faculty of Computer Sciences, to formally introduce to the training modules. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, distinguished guests, esteemed participants and respected faculty members. Assalamu alaikum. It is my absolute pleasure to welcome you all to the AI Week, a dedicated 4-day training workshop focused on exploring the transformative role of artificial intelligence in education. We are at the forefront of technological revolution, and as an educator, it is essential for us to embrace these advancements not just as a tool, but as a partner in enhancing teaching, learning, and research. The primary goal of this workshop is to equip participants with practical knowledge and hands-on experience in integrating AI into various aspects of education. In this workshops, over the next 4 years, we will dive into AI in research, in which discovering how AI can streamline literature review, data analysis, and research writing. At day 2, AI in classroom management and curriculum designing, in which exploring AI-driven strategies to enhance classroom management and structure effectiveness in the designing of curriculum. And at day 3, we will go for the AI in lesson planning and lecture presentation. Day 4 belonging to AI in assessment, designing, evaluation, and conduction of surveys. Through expert-led sessions, interactive demonstration, and discussions, we aim to empower you with AI-driven strategies that will not only save time but also improve the quality of education. The basic key takeaways: by the end of this training, we hope that the participant will be able to gain confidence in using AI tool for educational purpose, develop practical AI assistant techniques for research, teaching, and assessment, and last one is to understand the ethical consideration and the best practices of AI implementation. We encourage you to engage actively, ask questions, and share your insights. This is not just a training, it's a collaborative space for learning and innovation. And now we officially begin day 1, AI in research. I will hand over it to my AI assistant that gives you a just brief introduction of the first day trainers. Thank you very much. This is the time which we are going to spend on the research work. So next is the connected papers. Connected papers is again for the literature review, and what we can add one paper in the search bar and we can have a list of papers which are connected to that domain. इसमें हम देख लेते हैं कि बहुत सिंपल और इजी है. दिस इज़ द होम पेज. इसमें हम कोई कनेक्टेड पेपर, आप इसका DOI या कोई भी टॉपिक आप इसमें सेलेक्ट करें. जी उससे भी कर सकते हैं सर. अभी मेरे पास कोई
सो अभी हमने सर्च बार में एक DOI ऐड किया है. इट इज़ सर्चिंग फॉर द डाटा. So yes, this is the origin paper. This is the key paper which I added into the search bar. First one. जी फर्स्ट origin paper लिखा है उस पर. उसके बाद उससे रिलेटेड पेपर्स आ गए सारे हमारे पास. दिस इज़ द की पेपर. दिस इज़ अगेन गिविंग अस द लिंकेज, जो हमें इंटरकनेक्टेड रिसर्च थीम्स बता रहा है कि इससे रिलेटेड क्या क्या सर्च हुई है और किस किस ने की है. उससे रिलेटेड हमारे पास ये सारे आ जाएंगे, पेपर्स आ जाएंगे. क्योंकि ये मेरा अपना पेपर था तो मेरी ही लैब के 2-3 और पेपर्स इसमें आ गए हैं सर्च में, ऑलमोस्ट द रेलेवेंट पेपर. तो आप यहाँ से किसी पर भी क्लिक करें और उसमें से आप देखें कि इट कैन बी ओपनड इन सिमेंटिक स्कॉलर. दिस इज़ अगेन अ सर्च इंजन फॉर द रिसर्च आर्टिकल्स. देन वी हैव पब्लिशर पेज, देन वी हैव गूगल स्कॉलर. आप जिसमें इसको ओपन करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, उसकी रेफरेंस को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको हम इसमें कर सकते हैं. सो इसमें इसका एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है. इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पेपर्स आ जाते हैं रिलेटेड टू द सेम फील्ड, कि वही एक स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट लिटरेचर डाउनलोड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर एब्स्ट्रैक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ देयर रेफरेंसेस. और अगर फुल लेंथ आर्टिकल अवेलेबल है तो वो उसको करेगा. अगर हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इसको करते हैं तो ये हमें जाकर ओपन करके देता है इन सिमेंटिक स्कॉलर. ये हैं हमारे पास वो टूल्स विच आर इंटरकनेक्टेड. सिमेंटिक स्कॉलर आ गया कनेक्टेड पेपर्स में, तो वो पेपर का टाइटल जो हमने उसमें ऐड किया था कनेक्टेड पेपर्स में, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं इन सिमेंटिक स्कॉलर. दिस कैन अगेन बी लॉग्ड इन. अपने जीमेल से आप अकाउंट बना लेते हैं इसका. इट कैन बी सेव टू लाइब्रेरी, इट कैन बी साइटेड, और इसमें से आप जो भी इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उस पेपर को पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं. देन इट इज़ गिविंग अस द रेफरेंसेस एंड अगेन द रिलेटेड पेपर्स. मतलब एक पेपर से हमारे पास कुछ पेपर्स ओपन हुए एंड अगेन इफ़ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट वन मोर पेपर आउट ऑफ दैट लिस्ट, तो उसमें से इंटर रिलेटेड पेपर्स उसके हमारे और आ जाते हैं. सो एन एक्सटेंसिव रिसर्च literature review can be easily carried out by using this one tool. What is the difference between research traffic and this? Connected. They are two tools for the same purpose. Both are जी लिटरेचर रिव्यू में ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं और एक पेपर से हमारे पास डिफरेंट पेपर्स आ जाएंगे. सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल. जिस तरह से हमारे पास सर्च की लिमिटेशंस आ जाती हैं तो एक को छोड़ के हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं इजीली. सो दिस इज़ कनेक्टेड पेपर्स एंड नेक्स्ट इज़ द चैट PDF. हियर कम्स योर क्यूरी सर, कि जहाँ पर आपने कहा था कि हम एक पेपर से कोई आंसर लेना चाहते हैं, उसमें से देखना चाहते हैं व्हाट मेथडोलॉजी, व्हाट कंक्लूजन, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ दैट स्पेसिफिक पेपर और द स्टडी. तो हम ये सिलेक्ट करते हैं चैट विद एनी PDF. इसमें कोई भी PDF अपलोड करें और उसमें से जो भी फाइंड करना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, वी कैन हैव द आंसर अवेलेबल. उसमें हमें आंसर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो क्रिटिकली एनालाइज करके हमें उसमें से आंसर ला के देगा. सो इसमें मैं एक बताना चाहूँगी कि दिस इज़ चैट PDF. इसमें मैं अगर कोई एक पेपर अपलोड करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी आप लॉगिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द जीमेल. इसमें आपकी लाइब्रेरी जनरेट हो जाएगी, दैट विल बी सेव टू दैट स्पेसिफिक अकाउंट. सो हियर आई हैव अपलोडेड अ PDF. फुल लेंथ आर्टिकल हमने इसमें अपलोड कर दिया, बट अगेन टू रिमाइंड यू ऑल, डोंट एवर upload
your unpublished data. So हमारे भी एक मेंटोर ने हमें बताया था कि नथिंग इज़ फ्री इन दिस यूनिवर्स, यू हैव टू पे समथिंग। तो अगर आप अपना अनपब्लिश डाटा दे रहे हैं, दैट मीन्स वो संभाल के थोड़ी रखेगा, उसको रिपॉजिटरी में ले जाएगा, उसको कहीं पर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि दिस इज़ द फुल लेंथ आर्टिकल। सो इस फुल लेंथ आर्टिकल में उसने मुझे एक समरी बना के दे दी। दिस शॉर्ट कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन द प्रिपरेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, वो आपको नज़र आ रहा होगा, ऑफ हाई स्ट्रेंथ मोंटमोरिलोनाइट दिस कंपोजिट्स। और ये इसने पूरी उसकी एक ये कह लें कि हाईलाइट्स बता दी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पेपर एंड व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पेपर, उसकी एक शॉर्ट समरी। अब नीचे अगर आप देखें तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, वी कैन ऐड आवर ओन क्वेश्चन, प्लस इसमें हमारे पास कुछ डिज़ाइन क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समराइज दिस कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल व्हाट मेथड्स वर यूज्ड टू कंफर्म द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस, कि उसमें मेथोडोलॉजी हमने कौन सी यूज़ की। देन जैसे सर आपका क्वेश्चन था कि वेरिएबल्स अगर हम देखना चाहते हैं तो जो उस डोमेन की रिसर्च होगी ऑफ कोर्स वो उसके वेरिएबल्स डिफ़ाइन करेगा, उसका सर्वे बेस्ड एनालिसिस है या फिज़िकली लैब में कोई एनालिसिस हुआ तो उसको आप वो बताएगा। तो इसमें हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि इसने क्या बताया, व्हाट मेथड्स वर यूज्ड टू कंफर्म द इनकॉर्पोरेशन, दैट मीन्स उसने मटेरियल की कंफर्मेशन कैसे की है। तो इस कंफर्मेशन से उसने ये सारी कंफर्मेशन बता दी, एनालिसिस टेक्निक्स बता दी कि किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इन एडिशन उसको रेफरेंस कैसे दे रहा है, रेफरेंस उसको दे रहा है पेज नंबर के साथ। दैट मीन्स इस PDF में कौन से पेज नंबर पर ये डिटेल्स अवेलेबल हैं। वैसे अपने हाउ टू ऐड कंपैरेटिव एनालिसिस, so with the help of this tool, With the help of this tool we can have ID, for example this is for one PDF, तो फिर हम दूसरे PDF के लिए वो सेम क्वेश्चन कर लें तो उस दोनों का एक आंसर आ जाएगा। प्लस वी हैव अनदर टूल एज वेल, आई थिंक वी वॉन्ट बी गोइंग इनटू दैट डिटेल। उसमें हमारे पास दो पेपर्स को एट द सेम टाइम कंपेयर करके वो दे देता है, बट फॉर दिस वन वी हैव टू ऐड वन बाय वन। तो इसने यहाँ पर आप देखें कि पेज नंबर बताया, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो हाईलाइट कर देता है उस टेक्स्ट को कि कौन सा मटेरियल उसको किस तरह से जस्टिफाई कर रहा है और कौन से पेज नंबर पर हुआ है और कौन सी लाइन नंबर में है। इट्स ऑल गिवन ओवर हियर, जस्ट विद अ सिंगल क्लिक इट कैन बी गिवन। उसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये देखें पेज नंबर 1 पर अगर है तो पेज नंबर 1 पर उसने कहाँ पर उसको हाईलाइट किया। तो इस तरह से हम किसी भी PDF का एक समरी ले सकते हैं। हम पूरा पेपर नहीं पढ़ना चाहते, वी सिंपली वांट टू हैव द मेथोडोलॉजी सेक्शन, या हम सिंपली उसके फ्यूचर और प्रॉस्पेक्ट्स देखना चाहते हैं, सो वी कैन गो अप टू दैट स्पेसिफिक पार्ट। इसको क्वेश्चन दें, इससे पूछें और ये आपको खुद बताएगा। इसी तरह से अगर मैं न्यू चैट क्रिएट करूं, सॉरी इसको यहाँ से अगर हम क्लोज़ कर दें, मैं इसको नहीं रखना चाहती सो आई कैन डिलीट इट। मैं इसको सेव करना चाहती हूँ तो हम इसको सेव कर सकते हैं। इस चैट को मैंने डिलीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कोई और पेपर अपलोड करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पेपर है जिसमें 2 मेथोडोलॉजीज़ यूज़ हुई हुई हैं। सो बेशक वो पेपर में लिखा है, आई हैव गॉन थ्रू दैट पेपर, कि उस पेपर में लिखा है कि कौन सी टेक्निक बेस्ट है, बट वेदर दिस विल बी गिविंग अस आंसर और नॉट। सो मैं यहाँ से इसको So this is the paper uploaded.
इसमें हमने 2 टेक्निक्स यूज़ की हैं फॉर द सिंथेसिस और द डिज़ाइनिंग ऑफ द मटेरियल। तो आप बहुत जनरलाइज्ड इसमें भी सर्च एंट्री कर सकते हैं, कोई वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, एंड वी मे बी वेरी स्पेसिफिक। किसी बहुत ही स्पेसिफिक मटेरियल या पॉलीमर को आप सर्च करना चाहते हैं कि उससे हेल्प लेते हुए हम कोई मटेरियल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, सो वी कैन ऐड in either way. So it is giving us the choose papers to Power Research Rapids recommendation. So this is the recommendation which is giving this research rabbit, which is coming from this way. अब यहाँ पर हमारे पास 2 options हैं. We have biomedical and life sciences and we have all subject areas. So it is advised to search all subject areas, because there are interdisciplinary researches as well. Materials कहीं और भी यूज़ हो रहे हो सकते हैं, so we can have all the applications related to that specific material, और उस पर जितनी रिसर्च हुई हुई है वो सारी की सारी हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें अब आप देखें, दिस इज़ द फर्स्ट पेपर, अ पॉलीमर टेंडम सोलर सेल विथ 10% पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी। दिस इज़ अ जनरल वन। अगर मुझे ये टॉपिक या इसका टाइटल बेहतर लग रहा है या रेलेवेंट लग रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड इट टू कलेक्शन। इसको मैंने यहाँ से कर लिया ऐड टू कलेक्शन। सो दिस इज़ एडेड टू दैट स्पेसिफिक फोल्डर जो अभी मैंने कलेक्शन ऐड की थी, दैट इज़ फॉर टुडेज सेशन AI वीक। ये वहाँ पर चला जाएगा। अगर हम इसको रिमूव भी करना चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स वी कैन रिमूव एज वेल। सिमिलरली इसमें जाते जाएँ, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पेपर्स आ गए, and all papers are relevant to the specific field or the keywords which we added. वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जिस तरह से हम गूगल स्कॉलर में कोई कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं या गूगल में ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास कुछ ना कुछ अनलिंक्ड भी हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ उसका कोई काम नहीं होता, रिलेशन नहीं होता, लेकिन स्टिल वो उसकी सर्च हिस्ट्री में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आएंगे। सो वी हैव टू सिलेक्ट विच पेपर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एंड कंसिडर फॉर आवर रिसर्च। इसमें से जितने पेपर्स आप ऐड करना चाहते हैं वो सब ऐड कर लें। अब यहाँ से मैंने कुछ पेपर्स ऐड कर लिए। आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस टैब। सो ये हमारे पास वो पेपर्स आ गए हैं जो पेपर्स मैंने अभी इसमें ऐड किए अपनी कलेक्शन में। अगर आप इसको दोबारा से जानना चाहते हैं ऐड पेपर्स में, तो वी कैन ऐड सम मोर, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट वन ऑफ द पेपर। इस पर मैंने सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, तो हियर इज़ द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस पेपर। अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट रेलिवेंट नहीं लग रहा, सो वी कैन डिलीट द पेपर एज वेल, या हमें उससे फर्दर आगे जाना है या नहीं, दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी कैन डिसाइड। इसमें अब आप आगे देखें, वी हैव सिमिलर वर्क। हमें नहीं पता इस पर और क्या साइटेशन और लिटरेचर अवेलेबल है, बट दिस इज़ द रिसर्च रैबिट विच इज़ गिविंग अस इन्फॉर्मेशन। तो ये अगर हमें बता रहा है, तो ऑफ कोर्स वी कैन गो थ्रू दिस सिलेक्टेड पेपर, वी कैन गो टू द सिमिलर वर्क। इस पर हम क्लिक करेंगे। सो वी हैव ऑल द सिमिलर वर्क अवेलेबल जो इस पर काम हुआ है, उससे इंटर रिलेटेड, उसके इर्द गिर्द घूमता फिरता जो भी काम होगा उसको हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग दिस स्पेसिफिक पेपर। दिस इज़ द कनेक्शन इट इज़ शोइंग। अब इस कनेक्शन में आप देखें, किसी एक स्पेसिफिक सर्कल पर रखते हैं जब हम, तो ये हमें कोई एक रेफरेंस दे रहा है। तो ये जो बंच एक बन रहा है, इसका कोर वो होगा जो हमारी सर्च हिस्ट्री थी, दैट मीन्स वेयर वी स्टार्टेड, और उससे थोड़ा सा ब्रॉडर उसमें जाता जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ लेस रेलेवेंट और लिंक टू दैट स्पेसिफिक वर्ड्स, जो की वर्ड्स थे हमारे। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे आ जाते हैं पेपर्स, ये कनेक्शंस थे। ठीक है, इस कनेक्शन को मैं क्लिक करके फॉर द टाइम बीइंग क्लोज कर देती हूँ। देन वी कैन हैव द सजेस्टेड ऑथर्स, और इफ़ वी वांट टू गो टू द रिसर्च वर्क ऑफ अ स्पेसिफिक ऑथर, एक रिसर्च ग्रुप है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, उसका हम कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं इन द स्पेसिफिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक ऑथर के काम को, उसके पेपर्स को लेना चाहें, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी विजिबल इन दिस नेक्स्ट टैब। इसमें हमारे पास दीज ऑथर्स की पब्लिकेशंस देखें कितनी हैं,
इनकी पब्लिकेशंस और इनकी एरियाज़ आपके पास डोमेन्स आ गई कि ये डिफरेंट डोमेन्स में काम करें। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सो दिस विल बी मे बी अ स्लाइटली डिफरेंट पीस ऑफ वर्क। अगर हम इसके राइट पर चले जाएंगे, इससे देखें इसने बता दिया कि ये एक ऑथर है हु हैज़ दिस मच पब्लिकेशन एंड दिस मच साइटेशंस। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेल नोन ऑथर जिसकी 149,000 समथिंग साइटेशंस हैं। ओके, इसी तरह से हम इसमें वापस जाएं। अगर मैं दीज ऑथर्स को कर दूं क्लोज, देन वी हैव लिंक कंटेंट, उससे इंटर रिलेटेड, उससे लिंक कंटेंट हमारे पास क्या क्या आ रहा है, दैट कैन बी, इसमें अब आप देखें वी हैव कॉन्जुगेटेड पॉलीमर्स। इसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पेपर को, तो वो पेपर को एक और टैब में ओपन करेगा, दैट इज़ द लेंस। इसमें अब आप देखें वी कैन एक्सपोर्ट द पेपर्स, वी कैन हैव द रेफरेंसेस एज वेल। डायरेक्टली हमारे पास जब पेपर ओपन हो गया, उस पेपर के एब्स्ट्रैक्ट से देखकर इफ़ वी वांट टू गेट द साइटेशन, तो इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस वी हैव अनदर ऑप्शन अवेलेबल ओवर हियर, दिस इज़ कनेक्टेड टू ज़ोटैरो। दिस इज़ अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। रिसर्च रैबिट में जितनी रिसर्च होगी दैट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू ज़ोटैरो, तो उसमें दैट इज़ अ रेफरेंस मैनेजमेंट, तो हम डायरेक्टली उसमें डाउनलोड कर लेते हैं अपने रेफरेंसेस को और उसकी एक लाइब्रेरी जनरेट हो जाती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन आर टेक्स्ट फाइल्स। ठीक, तो इसमें हमारे पास हाईली साइटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं एंड द मोस्ट रेलेवेंट टू दैट स्पेसिफिक फील्ड। ओके, वो करेगा जिस तरह से हम एंड नोट यूज़ करते हैं। वी हैव अ अपकमिंग सेशन अभी टी ब्रेक के बाद है, वो है रेफरेंस मैनेजमेंट पर। तो रेफरेंस मैनेजमेंट में हमारे पास ज़ोटैरो भी है, उसमें हम देखेंगे कि हाउ वी कैन ऐड और डिलीट और एडिट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द रेफरेंस स्टाइल। इसको हम डायरेक्टली जब कनेक्ट करते हैं तो ये हमें ले जाता है ज़ोटैरो पे बेसिकली। अब ज़ोटैरो की टैब ओपन होगी, वहाँ से लॉग इन करके हर दफ़ा हम अपनी लाइब्रेरी को सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं, तो ऑनलाइन वर्जन में हमारे पास वो सारी लाइब्रेरी अवेलेबल होती है, प्लस ऑफलाइन भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरह से। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको अभी नहीं करना चाहती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च रैबिट। So you can log into this app using researchrabbitapp.com। आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू जीमेल, उसमें अपनी कलेक्शन ऐड करें एंड देन यू कैन सी द कनेक्शंस एज वेल, नॉट ओनली द रिसर्च बल्कि उसके कनेक्टेड रिसर्चर्स भी कर सकते हैं, और कनेक्टेड रिसर्चर्स के साथ कनेक्टेड पीस ऑफ वर्क भी हमारे पास आ सकता है कि हाउ वी कैन हैव इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द लिंक्ड रिसर्चेस, बल्कि हम सिंपली एक लिटरेचर रिव्यू अगर लिखना चाहते हैं तो लिटरेचर रिव्यू को लिखने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। It will again give us the review articles as well as the research articles. अभी मैंने सर एक किया ना, यहाँ से कलेक्शन में जाएंगे सर, कलेक्शन में एक लाइब्रेरी बना लें। अगर कोई नहीं है तो ऑफ कोर्स वो अनटाइटल कलेक्शन में चलता जाएगा। अगर आप अभी इनिशियली इसको लॉग इन कर रहे हैं देन वी हैव अनटाइटल कलेक्शन। जितना सर्च करेंगे, जो भी पेपर्स आप ऐड करेंगे दे विल बी एडेड इनटू दिस अनटाइटल्ड कलेक्शन। इसमें PDF का ऑप्शन भी आ रहा है। इफ़ ओपनली अवेलेबल, ओपन एक्सेस में हमारे पास वो PDF अवेलेबल होगा दैट कैन बी डायरेक्टली डाउनलोडेड, अदरवाइज रेफरेंस तो इसमें आ ही जाएगा, लेकिन अगर PDF है तो वो भी हम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
दिस इज़ हाउ डायरेक्टली उसमें हमारे पास PDF आ गया। उसकी साइटेशंस आ जाती हैं उस स्पेसिफिक पेपर की, उसके लिंक्स आ जाएंगे, उसके ऑथर्स की कंट्रीब्यूशंस आ जाएंगी, और उसमें से अगर आप कोई मटेरियल जैसे सिमिलर वर्क है तो हम इजीली इसमें कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल एंड इफ़ेक्टिव टूल कि जो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं उस लिटरेचर रिव्यू को एक एक पेपर को सर्च करने के बाद वो हमें ख़ुद देखना पड़ता है कि वेदर गूगल इज़ गिविंग अस द राइट आंसर और नॉट, या गूगल स्कॉलर से आपको बहुत डिफरेंट भी आर्टिकल्स कई दफ़ा आ जाते हैं। तो दिस इज़ द टूल कि जो हमारे उसी डोमेन में रहते हुए उसको आर्टिकल्स सेलेक्ट करके लेकर आएगा। वो ओपनली अवेलेबल है या ओपन एक्सेस पेपर्स है, या जैसे साइंस डायरेक्ट के ऐसे पेपर डाउनलोड नहीं हो सकते है ना डायरेक्टली? तो ये जो सर्च इंजन है ये ओपनली अवेलेबल पेपर्स को देखता है या दूसरे पेपर्स? जी सर, अगर हमारे पास ओपनली अवेलेबल फुल टेक्स्ट आर्टिकल मौजूद है तो वो उसको डाउनलोड भी करेगा। प्लस अगर वो नहीं है देन ऑफ कोर्स वी हैव टू गो फॉर समथिंग ऑल्टरनेट, एक टूल हमें यूज़ करना पड़ेगा फुल लेंथ डाउनलोड करने के लिए। सेकेंडली वी कैन हैव डायरेक्टली असेस्ड, जिस तरह से हम रेफरेंस डाउनलोड कर लेते हैं, RIS में कर लेते हैं, हम बिबटेक्स में कर लेते हैं, उसको हम डायरेक्टली ज़ोटैरो में ले जाते हैं और अदरवाइज़ हम उसको एंड नोट के साथ लिंक कर लेते हैं तो उसका रेफरेंस आ जाता है। जस्ट एब्स्ट्रैक्ट प्लस रेफरेंस हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आप लोग एक चीज़ सीख चुके हैं, सो आई थिंक हम आगे चल रहे हैं। सो SciSpace is for the literature review. This is again a search engine searching the research articles on a specific field. तो हम इसको करेंगे, this is for the literature review, और इसमें आप ask questions as many as you can to refine your research. अपना problem statement बनाने के लिए, अपने research idea को refine करने के लिए we can ask many questions, but of course we will have certain limitation, जिसमें हमारे पास open जो हमारे पास ये SciSpace है उसमें सिर्फ हमारे पास 5 searches की option available है for a day. So we can ask questions to find out the topic. We have paraphrasing option available over here. It can be added to the Chrome extension. आप इसको डायरेक्ट अपने Chrome में ऐड कर लें ताकि जब कभी आप जो भी कुछ सर्च करें वो डायरेक्टली आपको SciSpace से सर्च करके देगा. Then we can upload papers and get insights accordingly. For example, if we want to know something out of a specific paper, तो उसको हम upload कर सकते हैं, उसको उससे आंसर उसका ले सकते हैं. Then we can chat with the PDF. It goes to the Copilot and explains the selected text. कोई specific part of the paper जो आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको हम समझ सकते हैं by highlighting the text, and then we can ask this to translate or explain in a simpler way. And it is linked with Zotero. That means it takes the references directly from the SciSpace and can be connected to Zotero. तो directly हम अपने Word की फाइल में उसको अपलोड कर सकते हैं. So this is the SciSpace. और अगर मैं अपने SciSpace पे जाऊँ so this is how it looks like. You can log in using your Gmail accounts. इसमें अब हम देखें अगर ये इसका होम पेज है, then we have my library. इस my library में आप जो भी कुछ सर्च करते हैं, whatever is relevant to your field and whatever you want to save can be saved into my notebooks. We can create as many notebooks as we can. Then it has the option of chat with PDF. सिंपली आप PDF अपलोड करें और इसमें PDF या फिर कोई पेपर आ जाता है तो उस पेपर से हम उसको उसमें चैट कर सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन आस्क क्वेश्चन सो दैट इट विल गिव अस आंसर राइट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक आर्टिकल. किसी और से नहीं देगा, सिर्फ उसी आर्टिकल में जो भी चीज़ उससे डिस्कस हुई है वो बोलेगा. देन वी हैव लिटरेचर रिव्यू, वी हैव AI राइटर, वी कैन फाइंड टॉपिक्स. इसमें आप देखें कि व्हाट आर द हॉट टॉपिक्स इन द फील्ड ऑफ
climate change, what is the material which is being utilized for the environmental pollution, जो भी कुछ आप search करना चाहते हैं. Then we have paraphraser, citation generator, extract data, and this is all available in one tool. अब आप यहाँ पर कुछ भी search करें, these are my recent searches, तो वो ज़्यादा specific हो जाएंगी. I think एक क्वेश्चन है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ये मुझे पहले ही कह रहा है कि आपके पास लिमिट ख़त्म हो गई है. तो आई कैन गो टू माई लाइब्रेरी. हाँ जी, फ्री टूल है बट स्टिल वी हैव सर्टन लिमिटेशंस. हमारे पास हम कितनी सर्चेज उसमें अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज़ लिमिटेड टू अ फ्री वर्जन. अगर आप उसमें प्रो या पेड वर्जन ले लेते हैं देन ऑफ कोर्स वी हैव लिमिटेड अनलिमिटेड सर्चेज अवेलेबल, फिर हम उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं. अब ये जी सर, यस, अगर हमारे पास मोर देन वन जीमेल अकाउंट्स हैं देन ऑफ कोर्स वी कैन हैव मोर देन वन अकाउंट्स ओवर हियर एज वेल. एक से लॉग इन करें, आपके 5 लिमिटेशंस आ गई हैं, 5 सर्चेस की लिमिटेशन अटेन हो गई, देन यू कैन यूज सर्टन ऑल्टरनेटिव जीमेल एज वेल. बट आई थिंक दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ इफेक्टिव एंड एक्टिवली यू आर एंगेज्ड विद द रिसर्च, और एक ही दिन में आपने कितना काम करना है. So I have added a question, how does climate change impact the biodiversity? So this is giving us information or the data or the summary from the top 5 papers. और इसमें आप देखें कि वी हैव द रीसेंट पब्लिकेशंस. यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दिस इज़ द टूल विच गिव्स अस द रीसेंट पब्लिकेशंस, और हमें वहाँ से ही बताता है कि क्या काम रिसेंटली हो रहा है इन द रिसेंट टाइम पीरियड, नॉट द हाईली साइटेड बट द रीसेंट पब्लिकेशंस. तो यहाँ पर आप देखें कि वी हैव फॉर एग्जाम्पल दिस पेपर इज़ अवेलेबल. अगर मैं इस पर जाना चाहती हूँ, आई विल डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस. इस पे इसकी अगर राइट साइड पे आप देखें, सो वी हैव द इनसाइट्स, कंक्लूजन, समराइज टेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट, सब चीज़ें उसकी आ रही हैं. वट एवर वी वांट टू हैव आउट ऑफ दैट स्पेसिफिक पेपर, हम उसको डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली ले सकते हैं फ्रॉम दैट स्पेसिफिक टैब. यहाँ पर ये जो इसकी साइट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वी हैव मेथड्स यूज, लिटरेचर सर्वे, कोई भी एक ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल हम मेथडोलॉजी किसी भी मटेरियल सिंथेसिस की डिफ़ाइन करना चाहते हैं, वी आर लुकिंग फॉर डिफरेंट पेपर्स. अगर मैं सर्च कर रही हूँ, मैं डिफरेंट पेपर्स इसलिए ढूंढ रही हूँ कि मैंने अपने मटेरियल को सिंथेसाइज कैसे करना है ये डिसाइड करना चाहती हूँ, तो मैं डायरेक्टली मेथडोलॉजी की सेक्शन में जाऊं और उसमें से हर पेपर की सिर्फ और सिर्फ मेथडोलॉजी देखती रहूं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प दिस साइज स्पेस. तो किसी भी पेपर के किसी भी रिजल्ट्स पर आप चले जाएं फॉर एग्जांपल, तो वो हमें रिजल्ट्स इसके दे देगा. ठीक, अगर हम कुछ और करना चाहते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखना चाहते हैं, इसके फाइंडिंग्स देखना चाहते हैं, सो इट विल एलेबोरेट द वन टेक्स्ट फाइल, वन पेपर फाइल आउट, गिविंग अस ईच एंड एवरी डिटेल वट एवर वी आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम दिस. ऐसा नहीं कि वो खुद से दे देगा, ऑफ कोर्स हमें उसमें प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी, उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो हम उसमें से सिलेक्ट करते जाएंगे कि जो जो चीज़ें चाहिए. फॉर एग्जांपल रिसर्च गैप पे अगर चले जाते हैं तो वो हमें दे देगा इसका रिसर्च गैप. तो ये इस तरह से टेबुलेटेड वे में हमारे पास एक समरी बन जाएगी उस स्पेसिफिक पेपर की. सो आई थिंक दिस वुड बी गिवन ओवर हियर. डेटा सेट है, पॉपुलेशन सैंपल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं. ये हर किसी की अपनी फील्ड, अपनी डोमेन पर डिफाइन करेगा व्हाट वी आर गोइंग टू सर्च एंड हाउ वी हैव टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट द डाटा आउट ऑफ दैट स्पेसिफिक पेपर एंड पब्लिकेशन. उसने तो हमें ये समरी दे दी.
We can request PDF, we can save और bookmark in our library कोई specific paper जो हमें पसंद आ रहा हो या हमारे काम से related है उसको हम select कर सकते हैं. We can chat. अब चैट का मतलब यही है कि हम उसमें से डिफरेंट क्वेश्चन करें कि हमें मेथडोलॉजी में बताओ कि ये वाला केमिकल, ये वाली मटेरियल क्यों यूज़ की, आपने सर्वे बेस्ड अगर किया तो क्यों किया. सो दिस विल जस्टिफाई द पेपर्स एंड द फाइंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टडी. देन येस इट कैन बी एडेड टू माई नोटबुक. फिर पैराफ्रेजर आप करना चाहते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं. तो जो भी चीज़ है इसको सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसको सेव कर लेंगे. तो यहाँ ही पर हमारे पास एक कंपैरिजन आ गया जब हमने कंसेंसस की बात की थी. दैट गेव अस रिजल्ट्स फ्रॉम द हाईली साइटेड पेपर्स. और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट टूल पे आ रहे हैं साइटस्पेस, दिस इज गिविंग अस द रीसेंट पब्लिकेशन. सो रिसेंटली क्या काम हो रहा है इन द प्रेजेंट ईरा, ये आइडिया हमें यहाँ से मिल जाएगा. और हाई साइटेशंस की अगर हम बात करते हैं जो ऑथेंटिक है, विच इज़ अ वायबल टॉपिक, तो उसको हम लेकर जा सकते हैं फ्रॉम द कंसेंसस. सो लेट्स ट्राई. आप अपने सिस्टम्स पे इसको ट्राई करें. लॉग इन कर लें. ये हमारे पास आप साइटस्पेस अगर गूगल में भी लिखेंगे इट विल गिव यू डायरेक्टली द लिंक typeset.io. तो इससे आप लॉग इन कर लें जीमेल की हेल्प से. सो जस्ट फॉर अ ट्रायल enter a research, enter something what you want to find. कर सकते हैं प्लस कोई स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन अ कंप्लीट क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि व्हाट आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो हम उसको पूरा वो आपको सारे ऑप्शंस दे देगा. अगर आप स्पेसिफिक डोमेन में रहते हुए किसी एक स्पेसिफिक, जैसे सोलर सेल मैंने ऐड किया था, अगर उसको देखना चाहेंगे तो वो आप सोलर सेल की कोई स्पेसिफिकेशन ऐड कर लें तो उसको आप सर्च कर सकते हैं. जी यहाँ से इस पर क्लिक करें, यहाँ से माई नोटबुक इस पर आप नहीं, ये डायरेक्टली इसमें होगा, ऑनलाइन होगा ना. फिर जब भी आपको करना पड़ेगा आप ऑनलाइन अपना सिस्टम खोलेंगे, इसमें जाएंगे. जिस पार्ट को आप सेव करना चाहते हैं वो हो जाएगा. हो जाएगा, पूरी लाइब्रेरी उसकी सेव हो जाएगी. डॉक्टर मंजर जी सर. क्या मैं किसी बच्चे का अपलोड ChatGPT PDF कर सकता हूँ? चाहे PDF थीसिस के बता दें. जी जी सर. इसमें हम डिपेंड करता है कि मेरे ख्याल में वो पेड वर्जन में जब हम अपनी फ़ाइल अपलोड करते हैं दैट इज़ इन द पेड वर्जन. यहाँ पर हमें क्वेश्चंस ऐड करने पड़ेंगे. अगर वो ऑनलाइन उसकी लाइब्रेरी में थीसिस भी अवेलेबल है तो वो उसको आप शो करेगा. अगर मैं कोई थीसिस अपलोड करता हूँ क्या वो टर्नटन की रिपोजिटरी में चला जाएगा? यस. यहाँ पर आप AI जनरेटेड टूल्स जितने भी यूज़ कर रहे हैं वो सब रिपोजिटरी में जाएंगे. और अगर रिपोजिटरी उसको पिक नहीं भी करता किसी टाइम पर, फिर भी उसके डाटा सेट में तो वो चीज़ चली गई ना. तो इसलिए रिकमेंडेड है कि अपने जो वर्क है वो यहाँ अपलोड ना किया जाए. यस यस सर. थैंक यू. ये जी, अपना कॉन्फिडेंशियल काम जो अभी पब्लिश नहीं है और जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि उसको अपलोड ना करें, बिकॉज उसके डाटा सेट में उसके बैकएंड पे तो ये चीज़ें सेव हो जाएंगी. तो हो सकता है आप कोई डाटा खुद से, आपका ओरिजिनल डाटा है वो कहीं पर जाकर रिपोजिटरी में आ जाए और आप फिर कहें कि ये तो हमारा काम था. जी सर. मिस, ये एक ना लिमिट वाला जो इशू है
कैसे इसको ओवरकम? सर पेमेंट पे पेड वर्जन हमारे पास अनलिमिटेड सर्चेस अवेलेबल हैं। अभी ये फ्री है इसलिए इसमें लिमिटेड नहीं है। सर्च कर सकते हैं, सर्च हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर लिया तो उसके बाद कितनी दफ़ा हम सर्च कर सकते हैं, दैट इज़ लिमिटेड फॉर दिस फ्री वर्जन। अगर हमारे पास पेड वर्जन आ जाता है देन ऑफ कोर्स हमारे पास अनलिमिटेड सर्च ऑप्शंस आ जाते हैं। ये जो रेपोजिटरी में जाने वाली बात थी उससे रिकॉर्ड पूछ रहे हैं कि अगर हम अपनी ही जो सर्च कर रहे हैं वर्ड्स तो क्या वो भी उसमें आ जाएंगे रेपोजिटरी में? हम अपने काम को लिटरेचर से सर्च कर रहे होंगे ना, तो वो एक अलग चीज़ है। अगर हम अपना डाटा उसमें अपलोड ना करें, अपनी फाइंडिंग्स उसमें अपलोड ना करें, जो रिजल्ट्स अभी पब्लिश नहीं हैं, अगर मेरा कोई पेपर आ जाता है ऑफ कोर्स वो फाइंडिंग मैं शेयर कर सकती हूँ वहाँ पर, लेकिन हो सकता है बल्कि वो लाइब्रेरी से खुद ही निकाल के दे दे, लेकिन वो काम जो पब्लिश नहीं है उसके लिए हाईली ये एडवाइजेबल है कि उसको अपलोड ना करें। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे जी अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। अभी ये टूल पे देख रहा था, देयर इज़ अ ऑप्शन टू स्निप मैथ इक्वेशन। अभी वो मैथ इक्वेशंस का ना वो चैट में अपलोडिंग में, तो अब मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। डिड यू एक्सप्लोर दिस? मैथ्स की इक्वेशन आप सर्च बार में ऐड करना चाहते हैं? जी मैम। सो आई थिंक आई हैव लिमिटेड नॉलेज ओवर हियर, मैं तो इंग्लिश में ही सर्च करती हूँ। नहीं, वो एक ऑप्शन था वैसे, स्निप मैथ इक्वेशन। मैथ्स की इक्वेशन इसमें सर्च करने के लिए एनीवन हैज़ एन आइडिया कि वो कैसे हम कर सकते हैं? क्यों सर? अगर आप इसको कॉपी और पेस्ट करें तो आई मीन नॉट सर्च, स्निप द मैथ इक्वेशन। मीन जैसे यू हैव टू राइट इक्वेशन, आप स्निप कर लेते हैं इक्वेशंस को और पेस्ट कर लेते हैं, मीन आपका टाइम बच जाता है। ओके 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 ठीक। मैं यही कह रही थी कि अगर हम उसको पेस्ट कर लें तो आई थिंक दैट वुड बी इजी। अगर हम पेस्ट करके सर्च करें तो भी वो रिजल्ट्स देगा, और अगर रिजल्ट्स में हमारे पास इक्वेशन नज़र आ जाती हैं तो ऑफ कोर्स उसको हम कॉपी करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर। अगर आप उसको मैथ टाइप करना चाहते हैं सर्च बार में, तो आपको फर्स्ट चैट जीपीटी से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेटेक्स कोड में, एंड देन व्हेन यू टाइप द लेटेक्स कोड इन दैट सर्च बार ऑफ दिस टूल, तो इट विल हेल्प यू आउट। अगर सर आपको मैथ इक्वेशन सर्च बार में लिखनी है तो देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट मैथ इक्वेशन into the latex format from ChatGPT, and that latex format will be put it in the search bar of this tool, so it will help you out inshallah. Okay sir, thank you. Thank you sir. So I think साइज स्पेस आपको समझ आ गया, इसका कंपैरिजन समझ आ गया। वी कैन गो टू दिस टूल, जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं तो इजीली उसमें से हम सर्च कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द सर्च जीपीटी। इफ़ समवन इज़ दैट रिसर्च फ्रीक कि वो चाहता है कि मुझे विकीपीडिया से कोई आंसर ना मिले, सारे के सारे रिसर्च आर्टिकल से ही मिले, सो यस यू कैन यूज़ सर्च जीपीटी इंस्टेड ऑफ गूगल स्कॉलर। तो हम इसको सर्च इंजन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और इसकी एक्सटेंशन हम अपने ब्राउज़र में ऐड कर लेते हैं, सो दैट व्हेनेवर वी गूगल एनीथिंग, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सर्च एनीथिंग, तो वो आपको डायरेक्टली जो रिज़ल्ट लेकर आएगा दैट विल बी फ्रॉम द रिसर्च आर्टिकल एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर साइट। ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास सर्च की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि हमने जो चीज़, जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है, दे आर पब्लिश्ड समवेयर, उसमें हमारे पास आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, और वही आर्टिकल्स जो हैं वो हमें उसको एज अ रेफरेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ चैट जीपीटी फॉर गूगल।
तो इसको हम डायरेक्टली एक्सटेंशन के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, तो हम डायरेक्ट उसी से रिज़ल्ट ले लेते हैं. So I am not going into detail for this. So we have discussed two tools for the search engines, and now I would like to move towards the literature review. Literature review, I think एक क्लासिकल मेथड में बहुत मुश्किल हुआ करता था. जब हम अपनी यूनिवर्सिटी में थे तो हमें मास्टर्स में सर ने ये कहा कि आपने पेपर से लिख के लाना है. तो वो पेपर से लिख के लाने का मतलब ये था, वट एवर जर्नल्स वी हैड अवेलेबल इन आर डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, हमने उसको पढ़ा, उसमें से एक एक लाइन को पढ़ा, उसमें से फ़ोटोकॉपी कराया या चाहे इन हैंड राइटिंग में जिस तरह से भी लिखा हमने उसको कॉपी किया और फिर अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई. दिस वॉज अ क्लासिकल मैथड, बट नाउ द ट्रेंड्स हैव चेंज. तो लिटरेचर रिव्यू में वी डोंट हैव टू इवन गो टू द गूगल स्कॉलर, बल्कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन्स मौजूद हैं. और वो कौन से हैं? वी हैव रिसर्च रैबिट, कनेक्टेड पेपर्स, इंसाइटफुल, लिट मैप्स, एलिसिट, आइरिस एंड साइट. These are the AI driven tools which can be utilized for the literature review. तो इस literature review को systematic और authentic way में डाउनलोड करने के लिए और एक समरी लेने के लिए we will first go to the research rabbit. So we can simply add the keywords. This is the login page for research rabbit. यहाँ से हम इसको लॉगिन करते हैं, जैसे हम जीमेल से कनेक्ट कर लेंगे उसको, तो लॉगिन हो गया. उसके बाद अपना रिसर्च आर्टिकल कोई इसमें पेस्ट कर दें, उसका टाइटल, और वी कैन ऐड एनी DOI और वी कैन ऐड एनी लिंक और वी कैन ऐड एनी कीवर्ड्स जिस पर हम सर्च करना चाहते हैं, हमें लिटरेचर चाहिए. सो इट विल गिव अस ऑल द रिलेटेड पेपर्स. This is my home page for the research rabbit. Because I have already logged in, तो मेरे पास ये इस फॉर्म में शो हो रहा है. अदरवाइज़ जो मैंने आपको इसकी स्क्रीन शो की है उसमें आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा और इसमें साइन अप का ऑप्शन आएगा. सो आई विल स्टार्ट विद कलेक्शन. हियर इज़ द कलेक्शन. सो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू कलेक्शन. न्यू कलेक्शन का मतलब ये है कि आज की वर्कशॉप के लिए अगर हम एक करना चाहते हैं, कोई फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, सो इसमें दिस इज़ एडिंग अ कलेक्शन. दिस इज़ AI फील्ड और टॉपिक जो भी आप सर्च करना चाहते हैं या किसी पेपर को एज अ रेफरेंस लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, उससे रिलेटेड लिटरेचर सर्च करना चाहते हैं, इसको यहाँ पर ऐड कर दें. सो क्या ऐड करें हम? कुछ नहीं करना चाहते आप? ओके, सोलर सेल. अगर मैं ये कहूँ कि मैं करना चाहती हूँ पॉलीमर सोलर सेल, पॉलीमर डिराइव्ड, तो आप बहुत जनरलाइज्ड इसमें भी सर्च एंट्री कर सकते हैं, कोई वर्ड्स ऐड कर सकते हैं. एंड वी मे बी वेरी स्पेसिफिक, किसी बहुत ही स्पेसिफिक मटेरियल या पॉलीमर को आप सर्च करना चाहते हैं कि उससे हेल्प लेते हुए हम कोई मटेरियल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. सो वी कैन ऐड इन आइदर वे. So it is giving us the choose papers to power research rabbit's recommendation. So this is the recommendation which is giving this research rabbit, which is coming from this way. अब यहाँ पर हमारे पास दो options हैं. We have biomedical and life sciences and we have all subject areas. So it is advised to search all subject areas because there are interdisciplinary researches as well. Materials कहीं और भी use हो रहे हो सकते हैं. So we can have all the applications related to that specific material. और उस पर जितनी research हुई हुई है वो सारी की सारी हमारे पास आ जाएगी. तो इसमें अब आप देखें, this is the first paper, a polymer tandem solar cell with 10% power conversion efficiency. This is a general one. अगर मुझे ये टॉपिक या इसका टाइटल बेहतर लग रहा है या रेलेवेंट लग रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड इट टू कलेक्शन. इसको मैंने यहाँ से कर लिया ऐड टू कलेक्शन. सो दिस इज़ एडेड टू दैट स्पेसिफिक फोल्डर जो अभी मैंने कलेक्शन ऐड की थी, दैट इज़ फॉर टुडेज सेशन AI वीक. ये वहाँ पर चला जाएगा. अगर हम इसको रिमूव भी करना चाहते हैं देन ऑफ कोर्स वी कैन रिमूव एज वेल.
सिमिलरली इसमें जाते जाएं, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पेपर्स आ गए एंड ऑल पेपर्स आर रेलिवेंट टू द स्पेसिफिक फील्ड और द कीवर्ड्स विच वी एडेड। वो ऐसा नहीं है कि वो जिस तरह से हम गूगल स्कॉलर में कोई कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं या गूगल में ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास कुछ ना कुछ अनलिंक्ड भी, हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ उसका कोई काम नहीं होता, रिलेशन नहीं होता, लेकिन स्टिल वो उसकी सर्च हिस्ट्री में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आएंगे। सो वी हैव टू सिलेक्ट विच पेपर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एंड कंसिडर फॉर आवर रिसर्च। इसमें से जितने पेपर्स आप ऐड करना चाहते हैं वो सब ऐड कर लें। अब यहाँ से मैंने कुछ पेपर्स ऐड कर लिए। आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस टैब। सो ये हमारे पास वो पेपर्स आ गए हैं जो पेपर्स मैंने अभी इसमें ऐड किए अपनी कलेक्शन में। अगर आप इसको दोबारा से जानना चाहते हैं ऐड पेपर्स में तो वी कैन ऐड सम मोर, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट वन ऑफ द पेपर। इस पर मैंने सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, तो हियर इज़ द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस पेपर। अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट रेलिवेंट नहीं लग रहा सो वी कैन डिलीट द पेपर एज वेल, या हमें उससे फर्दर आगे जाना है या नहीं, दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी कैन डिसाइड। इसमें अब आप आगे देखें, वी हैव सिमिलर वर्क। हमें नहीं पता इस पर और क्या साइटेशन और लिटरेचर अवेलेबल है, बट दिस इज़ द रिसर्च रैबिट विच इज़ गिविंग अस इन्फॉर्मेशन। तो ये अगर हमें बता रहा है तो ऑफ कोर्स वी कैन गो थ्रू दिस सिलेक्टेड पेपर, वी कैन गो टू द सिमिलर वर्क। इस पर हम क्लिक करेंगे। सो वी हैव ऑल द सिमिलर वर्क अवेलेबल जो इस पर काम हुआ हुआ है, उससे इंटर रिलेटेड, उसके इर्द गिर्द घूमता फिरता जो भी काम होगा उसको हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग दिस स्पेसिफिक पेपर। दिस इज़ द कनेक्शन इट इज़ शोइंग। अब इस कनेक्शन में आप देखें, किसी एक स्पेसिफिक सर्कल पर रखते हैं जब हम, तो ये हमें कोई एक रेफरेंस दे रहा है। तो ये जो बंच एक बन रहा है इसका कोर वो होगा जो हमारी सर्च हिस्ट्री थी, दैट मीन्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, और उससे थोड़ा सा ब्रॉडर उसमें जाता जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ लेस रेलिवेंट और लिंक टू दैट स्पेसिफिक वर्ड्स जो की वर्ड्स थे हमारे। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे आ जाते हैं पेपर्स, ये कनेक्शंस थे। ठीक है, इस कनेक्शन को मैं क्लिक करके फॉर द टाइम बीइंग क्लोज कर देती हूँ। देन वी कैन हैव द सजेस्टेड ऑथर्स, और इफ़ वी वांट टू गो टू द रिसर्च वर्क ऑफ अ स्पेसिफिक ऑथर, एक रिसर्च ग्रुप है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, उसका हम कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं इन द स्पेसिफिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक ऑथर के काम को, उसके पेपर्स को लेना चाहें तो ऑफ कोर्स दैट विल बी विजिबल इन दिस नेक्स्ट टैब। इसमें हमारे पास दीज ऑथर्स की पब्लिकेशंस देखें कितनी हैं, इनकी पब्लिकेशंस और इनकी एरियाज़ आपके पास डोमेन्स आ गई कि ये डिफरेंट डोमेन्स में काम करें। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सो दिस विल बी मे बी अ स्लाइटली डिफरेंट पीस ऑफ वर्क। अगर हम इसके राइट पर चले जाएंगे, इससे देखें इसने बता दिया कि ये एक ऑथर है हु हैज़ दिस मच पब्लिकेशन एंड दिस मच साइटेशंस। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेल नोन ऑथर जिसकी 149,000 समथिंग साइटेशंस हैं। ओके, इसी तरह से हम इसमें वापस जाएं। अगर मैं दीज ऑथर्स को कर दूं क्लोज, देन वी हैव लिंक्ड कंटेंट, उससे इंटर रिलेटेड, उससे लिंक्ड कंटेंट हमारे पास क्या क्या आ रहा है, दैट कैन बी, इसमें अब आप देखें वी हैव कॉन्जुगेटेड पॉलीमर्स। इसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पेपर को, तो वो पेपर को एक और टैब में ओपन करेगा, दैट इज़ द लेंस। इसमें अब आप देखें वी कैन एक्सपोर्ट द पेपर्स, वी कैन हैव द रेफरेंसेस एज वेल। डायरेक्टली हमारे पास जब पेपर ओपन हो गया, उस पेपर के एब्स्ट्रैक्ट से देखकर इफ़ वी वांट टू गेट द साइटेशन, तो इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस वी हैव अनदर ऑप्शन अवेलेबल ओवर हियर, दिस इज़ कनेक्टेड टू ज़ोटैरो। दिस इज़ अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। रिसर्च रैबिट में जितनी रिसर्च होगी दैट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू ज़ोटैरो, तो उसमें दैट इज़ अ रेफरेंस मैनेजमेंट, तो हम डायरेक्टली उसमें डाउनलोड कर लेते हैं अपने रेफरेंसेस को और उसकी एक लाइब्रेरी जनरेट हो जाती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन आर टेक्स्ट फाइल्स। ठीक,
तो इसमें हमारे पास हाईली साइटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं एंड द मोस्ट रेलेवेंट टू दैट स्पेसिफिक फील्ड। ओके, वो करेगा जिस तरह से हम एंड नोट यूज़ करते हैं। वी हैव अ अपकमिंग सेशन अभी टी ब्रेक के बाद है, वो है रेफरेंस मैनेजमेंट पर। तो रेफरेंस मैनेजमेंट में हमारे पास जोटेरो भी है, उसमें हम देखेंगे कि हाउ वी कैन ऐड और डिलीट और एडिट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द रेफरेंस स्टाइल। इसको हम डायरेक्टली जब कनेक्ट करते हैं तो ये हमें ले जाता है जोटेरो पे बेसिकली। अब जोटेरो की टैब ओपन होगी, वहाँ से लॉग इन करके हर दफ़ा हम अपनी लाइब्रेरी को सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं। तो ऑनलाइन वर्जन में हमारे पास वो सारी लाइब्रेरी अवेलेबल होती है, प्लस ऑफलाइन भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरह से। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको अभी नहीं करना चाहती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च रैबिट। So you can log into this app using researchrabbitapp.com। आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू जीमेल, उसमें अपनी कलेक्शन ऐड करें एंड देन यू कैन सी द कनेक्शंस एज वेल। नॉट ओनली द रिसर्च बल्कि उसके कनेक्टेड रिसर्चर्स भी कर सकते हैं, और कनेक्टेड रिसर्चर्स के साथ कनेक्टेड पीस ऑफ वर्क भी हमारे पास आ सकता है कि हाउ वी कैन हैव इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द लिंक्ड रिसर्चेस, बल्कि हम सिंपली एक लिटरेचर रिव्यू अगर लिखना चाहते हैं तो लिटरेचर रिव्यू को लिखने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। It will again give us the review articles as well as the research articles. अभी मैंने सर एक किया ना, यहाँ से कलेक्शन में जाएंगे सर। कलेक्शन में एक लाइब्रेरी बना लें, अगर कोई नहीं है तो ऑफ कोर्स वो अनटाइटल कलेक्शन में चलता जाएगा। अगर आप अभी इनिशियली इसको लॉग इन कर रहे हैं देन वी हैव अनटाइटल कलेक्शन। जितना सर्च करेंगे, जो भी पेपर्स आप ऐड करेंगे, दे विल बी एडेड इनटू दिस अनटाइटल्ड कलेक्शन। इसमें PDF का ऑप्शन भी आ रहा है। इफ़ ओपनली अवेलेबल, ओपन एक्सेस में हमारे पास वो PDF अवेलेबल होगा, दैट कैन बी डायरेक्टली डाउनलोडेड। अदरवाइज रेफरेंस तो इसमें आ ही जाएगा, लेकिन अगर PDF है तो वो भी हम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ डायरेक्टली उसमें हमारे पास PDF आ गया। उसकी साइटेशंस आ जाती हैं उस स्पेसिफिक पेपर की, उसके लिंक्स आ जाएंगे, उसके ऑथर्स की कंट्रीब्यूशंस आ जाएंगी, और उसमें से अगर आप कोई मटेरियल जैसे सिमिलर वर्क है तो वो हम इजीली उसमें कर सकते हैं। कि जो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उस लिटरेचर रिव्यू को एक एक पेपर को सर्च करने के बाद वो हमें ख़ुद देखना पड़ता है कि वेदर गूगल इज़ गिविंग अस द राइट आंसर और नॉट, या गूगल स्कॉलर से आपको बहुत डिफरेंट भी आर्टिकल्स कई दफ़ा आ जाते हैं। तो दिस इज़ द टूल कि जो हमारे उसी डोमेन में रहते हुए उसको आर्टिकल्स सेलेक्ट करके लेकर आएगा। So any confusion in this? I think we should move forward.
बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, अगर आप अभी नहीं भी ट्राई कर रहे तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप बाद में इसको ज़रूर ट्राई करें, बल्कि इसको यू मस्ट अपटेक दीज AI ड्रिवन टूल्स के जो आपको असिस्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एंड रिड्यूसेस द टाइम विच वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द रिसर्च वर्क. So next is the connected papers. Connected papers is again for the literature review, and what we can add one paper in the search bar and we can have a list of papers which are connected to that domain. इसमें हम देख लेते हैं कि बहुत सिंपल और इजी है. दिस इज़ द होम पेज. इसमें हम कोई कनेक्टेड पेपर, आप इसका DOI या कोई भी टॉपिक आप इसमें सेलेक्ट करें. जी उससे भी कर सकते हैं सर. अभी मेरे पास कोई अभी हमने सर्च बार में एक DOI ऐड किया है. इट इज सर्चिंग फॉर द डाटा. So yes, this is the origin paper. This is the key paper which I added into the search bar. First one. जी first origin paper लिखा है उस पर. उसके बाद उससे related papers आ गए सारे हमारे पास. This is the key paper. This is again giving us the linkage, जो हमें interconnected research themes बता रहा है कि इससे related क्या क्या search हुई है और किस किस ने की है. उससे related हमारे पास ये सारे आ जाएंगे, papers आ जाएंगे. क्योंकि ये मेरा अपना paper था तो मेरी ही lab के 2-3 और papers इसमें आ गए हैं search में. Almost the relevant paper. तो आप यहाँ से किसी पर भी click करें और उसमें से आप देखें कि it can be opened in Semantic Scholar. This is again a search engine for the research articles. Then we have publisher page. Then we have Google Scholar. आप जिसमें इसको open करना चाहते हैं, download करना चाहते हैं, उसकी reference को download करना चाहते हैं, उसको हम इसमें कर सकते हैं. So इसमें इसका abstract आ रहा है. इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पेपर्स आ जाते हैं रिलेटेड टू द सेम फील्ड, कि वही एक स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट लिटरेचर डाउनलोड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर एब्स्ट्रैक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ देयर रेफरेंसेस. और अगर फुल लेंथ आर्टिकल अवेलेबल है तो वो उसको करेगा. अगर हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इसको करते हैं तो ये हमें जाकर ओपन करके देता है इन सिमेंटिक स्कॉलर. ये हैं हमारे पास वो टूल्स विच आर इंटरकनेक्टेड. सिमेंटिक स्कॉलर आ गया कनेक्टेड पेपर्स में, तो वो पेपर का टाइटल जो हमने उसमें ऐड किया था कनेक्टेड पेपर्स में, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं इन सिमेंटिक स्कॉलर. दिस कैन अगेन बी लॉग्ड इन. अपने जीमेल से आप अकाउंट बना लेते हैं इसका. इट कैन बी सेव टू लाइब्रेरी. इट कैन बी साइटेड. और इसमें से आप जो भी इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उस पेपर को पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं. देन इट इज़ गिविंग अस द रेफरेंसेस एंड अगेन द रिलेटेड पेपर्स. मतलब एक पेपर से हमारे पास कुछ पेपर्स ओपन हुए एंड अगेन इफ़ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट वन मोर पेपर आउट ऑफ दैट लिस्ट, तो उसमें से इंटर रिलेटेड पेपर्स उसके हमारे और आ जाते हैं. सो एन एक्सटेंसिव रिसर्च literature review can be easily carried out by using this one tool. Connect.
They are two tools for the same purpose. Both are जी लिटरेचर रिव्यू में ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं और एक पेपर से हमारे पास डिफरेंट पेपर्स आ जाएंगे. सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल. जिस तरह से हमारे पास सर्च की लिमिटेशंस आ जाती हैं तो एक को छोड़ के हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं इजीली. So this is connected papers and next is the chat PDF. Here comes your query sir कि जहाँ पर आपने कहा था कि हम एक पेपर से कोई आंसर लेना चाहते हैं, उसमें से देखना चाहते हैं what methodology, what conclusion, what was the main purpose of that specific paper or the study. तो हम ये select करते हैं chat with any PDF. इसमें कोई भी PDF अपलोड करें और उसमें से जो भी फाइंड करना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, वी कैन हैव द आंसर अवेलेबल. उसमें हमें आंसर नहीं देना पड़ेगा बल्कि वो क्रिटिकली एनालाइज करके हमें उसमें से आंसर ला के देगा. सो इसमें मैं एक बताना चाहूँगी कि दिस इज़ चैट PDF. इसमें मैं अगर कोई एक पेपर अपलोड करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी आप लॉगिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द जीमेल. इसमें आपकी लाइब्रेरी जनरेट हो जाएगी, दैट विल बी सेव टू दैट स्पेसिफिक अकाउंट. सो हियर आई हैव अपलोडेड अ PDF. फुल लेंथ आर्टिकल हमने इसमें अपलोड कर दिया. बट अगेन टू रिमाइंड यू ऑल, डोंट एवर अपलोड योर अनपब्लिश्ड डाटा. सो हमारे भी एक मेंटोर ने हमें बताया था कि नथिंग इज़ फ्री इन दिस यूनिवर्स, यू हैव टू पे समथिंग. तो अगर आप अपना अनपब्लिश्ड डाटा दे रहे हैं, दैट मीन्स वो संभाल के थोड़ी रखेगा, उसको रिपॉजिटरी में ले जाएगा, उसको कहीं पर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है. तो अब आप यहाँ पर देखें कि दिस इज़ द फुल लेंथ आर्टिकल. सो इस फुल लेंथ आर्टिकल में उसने मुझे एक समरी बना के दे दी. दिस शॉर्ट कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन द प्रिपरेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, वो आपको नज़र आ रहा होगा, ऑफ हाई स्ट्रेंथ मोंटमोरिलोनाइट दिस कंपोजिट्स. और ये इसने पूरी उसकी एक ये कह लें कि हाईलाइट्स बता दी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पेपर एंड व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पेपर, उसकी एक शॉर्ट समरी. अब नीचे अगर आप देखें तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस. वी कैन ऐड आवर ओन क्वेश्चन, प्लस इसमें हमारे पास कुछ डिज़ाइंड क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल समराइज दिस कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल व्हाट मेथड्स वर यूज्ड टू कंफर्म द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस, कि उसमें मेथडोलॉजी हमने कौन सी यूज़ की. देन जैसे सर आपका क्वेश्चन था कि वेरिएबल्स अगर हम देखना चाहते हैं तो जो उस डोमेन की रिसर्च होगी ऑफ कोर्स वो उसके वेरिएबल्स डिफाइन करेगा. उसका सर्वे बेस्ड एनालिसिस है या फिज़िकली लैब में कोई एनालिसिस हुआ तो उसको अब वो बताएगा. तो इसमें हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि इसने क्या बताया, व्हाट मेथड्स वर यूज्ड टू कंफर्म द इनकॉर्पोरेशन, दैट मीन्स उसने मटेरियल की कंफर्मेशन कैसे की है. तो इस कंफर्मेशन से उसने ये सारी कंफर्मेशन बता दी, एनालिसिस टेक्निक्स बता दी कि किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. एंड इन एडिशन उसको रेफरेंस कैसे दे रहा है, रेफरेंस उसको दे रहा है पेज नंबर के साथ. दैट मीन्स इस PDF में कौन से पेज नंबर पर ये डिटेल्स अवेलेबल हैं. With the help of this tool we can have, for example this is for one PDF, तो फिर हम दूसरे PDF के लिए वो सेम क्वेश्चन कर लें तो उस दोनों का एक आंसर आ जाएगा. प्लस वी हैव अनदर टूल एज वेल, आई थिंक वी वॉन्ट बी गोइंग इनटू दैट डिटेल. उसमें हमारे पास दो पेपर्स को एट द सेम टाइम कंपेयर करके वो दे देता है. बट फॉर दिस वन वी हैव टू ऐड वन बाय वन. तो इसने यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर बताया, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो हाईलाइट कर देता है उस टेक्स्ट को कि कौन सा मटेरियल उसको किस तरह से जस्टिफाई कर रहा है और कौन से पेज नंबर पर हुआ है और कौन सी लाइन नंबर में है. इट्स ऑल गिवन ओवर हियर, जस्ट विद अ सिंगल क्लिक इट कैन बी गिवन. उसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली ये देखें पेज नंबर 1 पर अगर है तो पेज नंबर 1 पर उसने कहाँ पर उसको हाईलाइट किया. तो
इस तरह से हम किसी भी PDF का एक समरी ले सकते हैं। हम पूरा पेपर नहीं पढ़ना चाहते, वी सिंपली वांट टू हैव द मेथडोलॉजी सेक्शन, या हम सिंपली उसके फ्यूचर ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स देखना चाहते हैं, सो वी कैन गो अप टू दैट स्पेसिफिक पार्ट। इसको क्वेश्चन दें, इससे पूछें और ये आपको खुद बताएगा। इसी तरह से अगर मैं न्यू चैट क्रिएट करूं, सॉरी, इसको यहाँ से अगर हम क्लोज़ कर दें, मैं इसको नहीं रखना चाहती, सो आई कैन डिलीट इट। मैं इसको सेव करना चाहती हूँ तो हम इसको सेव कर सकते हैं। इस चैट को मैंने डिलीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कोई और पेपर अपलोड करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पेपर है जिसमें 2 मेथडोलॉजीज़ यूज़ हुई हुई हैं। सो बेशक वो पेपर में लिखा है, आई हैव गॉन थ्रू दैट पेपर, कि उस पेपर में लिखा है कि कौन सी टेक्निक बेस्ट है, बट वेदर दिस विल बी गिविंग अस आंसर और नॉट। सो मैं यहाँ से इसको सो दिस इज़ द पेपर अपलोडेड। इसमें हमने 2 टेक्निक्स यूज़ की हैं फॉर द सिंथेसिस और द डिज़ाइनिंग ऑफ द मटेरियल। तो उन दोनों टेक्निक्स में से कौन सी बेस्ट है? पहले तो उसने अपनी मर्ज़ी से अपनी एक समरी दे दी, व्हाट इट हैज़ गॉन थ्रू द टेक्स्ट, और उसने क्या फाइंड किया। लेकिन मैं इससे पूछूंगी कि विच टेक्निक वाज बेस्ट। So which of the following techniques for the fabrication gave better results? ये मैंने अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन इसको दिया, अदरवाइज वी हैव क्वेश्चंस अवेलेबल ओवर हियर। तो इसने पहली ही लाइन में बता दिया, द इन सिचू पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स प्रोवाइडेड बेटर रिजल्ट्स कंपेयर टू द ग्राफ्टिंग टेक्निक। दैट मीन्स कि वो जो पूरे पेपर की एक स्टडी थी उसने उसको एक लाइन में बता दिया कि ये इसकी टेक्निक ये वाली बेस्ट है। तो इसमें हमारे पास फिर देखें किस किस वे में बेस्ट है। उसने आगे से ये भी बता दिया, इन द फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देन वी हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल स्टेबिलिटी। उसने सारे वो फैक्टर्स बता दिए जो उस पेपर में कंपेयर हुए हुए हैं फॉर बोथ ऑफ द टेक्निक्स। और साथ में फिर अगर हम ये देखें, सो दिस इज़ पेज नंबर 1, तो पेज नंबर 1 में उसने क्या बता दिया, देन पेज नंबर 3 पे वो बता रहा है कि इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। देन अगेन पेज नंबर 3 पे उसने थर्मल स्टेबिलिटी बता दी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन हैव द एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक PDF फाइल, और उसमें से हम अपनी मर्ज़ी की जो भी क्यूरी है, जो कन्फ्यूजन है, कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट है जो हमें समझ नहीं आ रहा, तो उसको भी एक्सप्लेन करवाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। सो इस पे आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे? जी, एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट? So these are the tools which I have decided and selected for today's session. यहाँ तक अगर आपको कोई टूल जो आप अपटेक करना चाहें, उसको लेकर जाना चाहें अपनी रिसर्च में, दैट विल बी वेरी गुड। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम।
जैसे कि पार्ट्स की बात की थी, तो प्रेजेंटेशन का हमारे पास एक और डे की एक्टिविटी है, रिसर्च प्रेजेंटेशन, उस पे हम फिर बात करेंगे। टिल नाउ वी हैव वर्क फॉर द गूगल सर्च इंजन, फॉर द टाइटल डिज़ाइनिंग, फॉर द रिसर्च गैप एनालिसिस, फॉर द लिटरेचर रिव्यू। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपकी तरफ से एडिशन होनी चाहिए आपको लगता है, तो प्लीज़ यू आर मोर देन वेलकम। So this is the comparison how we have been going through the piles of books, and this is just what we are going on our laptop. We can opt the staircase and we can go through the escalator. So it's all up to us. I think we should take on this message and this technology to facilitate ourselves and to go with the global needs and demands. That's all from my side. Thank you so much. Thank you, Dr. Saiba. I'm sure it was a very informative session for all of you. आप सबको इन टूल्स के बारे में एक प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी डेली जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनमें इनकॉर्पोरेट कीजिए। इन केस कोई भी इशू आता है, वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू आउट। एंड देयर इज़ अ स्मॉल अनाउंसमेंट, जो हमारा आज का AI असिस्टेंट है वो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट वीडियो फॉर्म में लेकर आया है। सो प्लीज़ लिसन टू दिस अनाउंसमेंट। सफीर। Time for a tea break. Take a moment to unwind and recharge. Grab a cup of your tea and let's take a breather. And here's a polite reminder. Kindly form a queue at the tea station to save time. Remember, tea break lasts for 30 minutes. Go ahead, take this opportunity to refresh and recharge. We shall resume our session after tea break. This tea break is of 30 to 40 minutes and the tea is being served in cafeteria first floor. All of you are requested to please reach there, get yourself fresh, and then we will resume the second part of the session for today. Thank you very much.